Assalamualaikum dear students. I hope and pray that you all are safe and fine. Uh, we are studying the subject of money, banking and finance, for which we are consulting some books, in which the main book was Money, Banking and Finance by Riaz Ahmed Mia and The Economics of Money, Banking and Financial Markets by Frederick Mishkin. In this regard, we have so far covered a lot of concepts and a lot of topics, and I hope कि आपको वो सब topics हैं बहुत अच्छी understanding हो गई होगी. Now we have almost covered 80% or more of the syllabus. We are left with only a couple of topics. Today we will discuss about the credit risk, how it can be controlled and how the bank actually controls the credit risk. And then we'll be studying about the central bank, what are the roles of central bank or the functions of central bank, and with relate to Pakistan we will talk about the State Bank of Pakistan, and then we'll have a brief discussion about different organizations like PICIC or like IMF or like HPFC, and there are smaller institutions which are to which we call the specialized institution, and they perform different functions apart from the commercial banks. So for today's lecture, let's move on. Credit risk, how the credit risk can be mitigated. I have already told you that what is a credit risk, and now we'll talk about how it can be mitigated. Remember one thing, that no risk can be 100% evaporated, no risk can be 100% excluded, no risk can be 100% mitigated, but we will try, or the bank actually tries to minimize the risk, and this is what we will try to do here as well, कि कैसे वो रिस्क जो है उसको कम 100% ख़त्म नहीं किया जा सकता. देयर इज़ नो बिजनेस इन द वर्ल्ड विच इज़ रिस्क फ्री. सो बाय एंड लार्ज वी हैव रिस्क. हाँ, ये हो सकता है कि हम रिस्क को मिनिमाइज़ कर लें, 0.1% तक ले आएँ या इससे भी कम कर लें, बट द रिस्क विल रिमेन in any transaction. So for the risk mitigation, today we'll study about the canons of lending. We call it 5 C's, as you already had studied in somewhere the 7 C's of business communication. Similarly, here we have 5 C's, canons of lending. So these are the 5 things which a banker must look into while advancing loans. जैसा कि आपको पता है कि जब बैंक लोन देता है तो वो उसको रिकवर करता है 2 पार्ट्स में. एक वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, यानी कि वो पैसा जो कि लोन के तौर पे दिया गया है, और सेकंड अमाउंट होती है इंटरेस्ट की. दैट मीन्स ये वो पैसा है जिसके बाद बैंक उसके ऊपर प्रॉफिट कमाएगा. सो द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस द पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट, दैट 2 थिंग्स कंबाइन 1 इंस्टॉलमेंट. और जब वो पूरा पैसा प्रिंसिपल के तौर पे रिकवर हो जाता है, साथ के साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी रिकवर हो जाती है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ना सिर्फ आप इंटरेस्ट रिकवर करते जाएं बल्कि प्रिंसिपल भी वापस आए, एंड वाइस वर्सा. प्रिंसिपल अमाउंट आने के साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट आना भी ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक. इट विल बी द अमाउंट फ्रॉम विच द बैंक विल अर्न प्रॉफिट. सो अगर प्रिंसिपल रिकवर हो गया, इंटरेस्ट नहीं आया, दैट विल कॉज प्रॉब्लम, बिकॉज बैंक ने एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे एक्सपेंसेस किए होंगे उसके ऊपर. सो इट विल इवेंचुअली बेयर द लॉस. ऑन द अदर साइड, अगर सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट डिले होती चली जा रही है, सो ऐसी सूरत में एक छोटे चंक के लिए एक बड़ी अमाउंट या एक बड़ा जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लोन के तौर पे दी थी वो फोरगो हो रही है. सो ऐसी सिचुएशन में पहुंचने से पहले इस रिस्क को ख़त्म करना ज़रूरी है, और वो रिस्क हम कैनन्स ऑफ लेंडिंग के थ्रू ख़त्म तो नहीं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं. एंड देयर आर 5 थिंग्स. द फर्स्ट वन इज़ कैरेक्टर, देन कैपेसिटी एंड कैश फ्लो, इसको हम कंबाइन पढ़ेंगे, then capital, then collateral and conditions. So let's study it one by one. Firstly, character. So character को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. The first, the personal character, and second, professional character. पर्सनल कैरेक्टर की हम बात करते हैं, इसको हम बहुत एक ईजी सी एग्जांपल लेके चलते हैं. लेट्स से आपका एक फ्रेंड है, यू हैव मेनी फ्रेंड्स, और उसमें से एक फ्रेंड आपसे कोई पैसा उधार मांगता है और वो आपको कहता है कि मैं आपको 1 माह के बाद पैसा वापस कर दूँगा. द फर्स्ट थिंग दैट यू विल लुक वाइल एडवांसिंग हिम और वाइल गिविंग हिम और वाइल हेल्पिंग इज कि क्या ये इसका कैरेक्टर कैसा है, क्या ये हैबिचुअल है पैसा मांगने के लिए, या क्या ये पैसा इसने पहले भी कभी किसी से लिया था और पैसा वापस नहीं किया. सो ये वो चीज़ है जो पर्सनल कैरेक्टर पे
बात आती है कि ये इसकी हैबिट क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसका लेन देन का तरीक़ाकार कैसा है. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल पर्सनल कैरेक्टर. बैंक पर्सनल कैरेक्टर भी असेस करता है एडवांस करने से पहले, लोन देने से पहले, बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी. जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपके सामने मैं अगर 6, 7, 8 नाम लेता हूँ कि आप ही की यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के गार्ड हैं, एक कोई सीनियर पॉलिटिशियन है, आप एज्यूम करें कि आप एक बैंकर हैं, आप एक यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं और आप एक बैंक के क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं. ये सब लोग आपसे लोन लेने आए हैं. एक लेट से कि एक पॉलिटिकल पार्टी में लेट से नवाज शरीफ साहब हैं, एक जरदारी साहब हैं. अब ये आपके पास 5-6 ऑप्शंस हैं. प्रिंसिपल ऑफ योर यूनिवर्सिटी, देयर इज़ अ टीचर, देन अ गार्ड, देन मे बी अ पॉलिटिशियन. सो इन सब में से जब आप लोन देने लगेंगे तो पहली चीज़ जो आपके माइंड में आएगी दैट इज़ द कैरेक्टर. कि क्या मैं पॉलिटिशियन को लोन दूं, पैसा तो बहुत है, वो वापस कर भी सकता है, लेकिन उसका कैरेक्टर क्या है, क्या वो करता भी है. सिमिलरली एक गार्ड की बात करते हैं तो कैरेक्टर के साथ आपके ज़हन में और भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये वापस कर भी सकता है, कैरेक्टर तो ठीक है. सो पर्सनल कैरेक्टर वाइल एडवांसिंग लोन, वाइल गिविंग the money from the bank to a person who has come to the bank to borrow that amount. So पहली चीज़ जो आप देखेंगे that is the personal character. और बैंक कैसे देखता है, बैंक डिफरेंट सोर्सेज, जब भी कोई एप्लीकेशन देता है लोन लेने के लिए तो बैंक उसमें रेफरेंसेस इंक्लूड करता है. लेट्स से कि मैंने अगर बैंक से लोन लेना है तो मैं बैंक को एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ, उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर रेफरेंस का कॉलम होता है. सो मैं अपने तौर पे रेफरेंस दे रहा हूँ बैंक को कि अगर आप चाहें तो मेरे पर्सनल कैरेक्टर के बारे में ये 2 रेफरेंसेस मेरे हैं, आप इनसे पता कर लें. सो बैंक मेरे रेफरेंसेस से भी पता कर सकता है. फिर बैंक एक इंडिपेंडेंट अपनी इंक्वायरी भी कर सकता है. आपने सुना होगा या शायद कभी विटनेस भी किया हो कि बहुत से लोग बैंक के बिहाफ पे आते हैं और नेबर से, जिसने लोन लेना है उसके दाएं बाएं घर में उसके नेबर से कुछ इंक्वायरी करते हैं कि मिस्टर सो एंड सो या मिस सो एंड सो यहाँ रहती हैं, कब से रह रहे हैं, क्या करते हैं, आप कितनी देर से जानते हैं. सो इस किस्म की जो इंफॉर्मेशन ली जा रही होती है दैट इज़ टू गेट द नॉलेज ऑफ पर्सनल कैरेक्टर. देन सेकेंडली वी हैव प्रोफेशनल कैरेक्टर. प्रोफेशनल कैरेक्टर से मतलब है कि अब आप एक डॉक्यूमेंट के थ्रू चलना चाह रहे हैं. यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ECIB, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो. ये एक रिपोर्ट देता है, ECIB रिपोर्ट होती है और ये ब्यूरो एक इदारा है, स्टेट बैंक के अंडर काम करता है. इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता चलो. इसका जब भी कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या कोई भी बैंक से लोन लेता है तो इट इज़ मैंडेटरी बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, कि मंथ एंड पे या एक स्पेसिफिक डेट पे हर कमर्शियल बैंक अपने दिए गए लोन को रिपोर्ट करेगा स्टेट बैंक के इस इदारे को, यानी कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को. फॉर एग्जांपल बैंक ने मिस्टर ए को 1 लाख रुपए का लोन दिया है तो एक स्पेसिफिक मंथ में एक स्पेसिफिक डेट पे बैंक सेंट्रल बैंक के इस इदारे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को ये बताएगा कि मैंने मिस्टर ए, जिसका CNIC ये है, जिसका घर का एड्रेस ये है, 1 लाख रुपया लोन दिया है. इसी तरह ये एक बैंक की बात है, हो सकता है उसने 10 बैंकों से लोन लिए हैं तो 10 के 10 बैंक CIB डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे अपने अपने बैंक के दिए गए लोन के बारे में. देन CIB ये जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ये पूरे बैंक की रिपोर्ट को कंपाइल करेगा. जैसे मिस्टर ए ने HBL से भी लोन लिया, वो भी आ गया, अल हबीब से लिया, वो भी आ गया, अल्फला से लिया, नेशनल बैंक से लिया, मिज़ान से लिया, वो सारों को रिपोर्ट करके एक फ़ाइनल रिपोर्ट बना देता है जिसको हम कहते हैं CIB रिपोर्ट. और ECIB इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डाटा. सो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एक रिपोर्ट देता है कि एक इंडिविजुअल ने तमाम बैंकों से एक स्पेसिफिक डेट पे कितना पैसा लिया हुआ है. सो एक तो वो टोटल अमाउंट आ गई जितना बोरो किया हुआ है. फिर अगर कोई इंडिविजुअल, हम इसी एग्जांपल को आगे लेकर चलते हैं, मिस्टर ए किसी लोन में डिफ़ॉल्ट कर जाता है लेट से HBL बैंक के साथ, बाकी बैंकों में वो रेगुलर है लेकिन HBL के कोई इंस्टॉलमेंट उसने पे करनी थी जो वो पे नहीं कर सका. तो ऐसी सूरत में फिर प्रोविजनिंग का ऑप्शन होता है, या हम देखते हैं कि कितनी देर हो गई है उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दी. 30 दिन हो गए हैं, 60 दिन हो गए हैं, 90 दिन हो गए हैं. लेट्स से
यकम जनवरी 2020 को ड्यू थी और 3 माह गुजर गए, 31 मार्च 2020 तक उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो इसका मतलब है 90 डेज ओवर ड्यू हो गए, 90 दिन गुजर गए, उसने जो पैसे देने थे वो नहीं पे किए। तो अगेन इट इज़ मैंडेटरी बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि जिस भी बैंक का डिफ़ॉल्ट हो रहा है या होने जा रहा है या ओवर ड्यू हो रहे हैं, वो सेंट्रल बैंक को रिपोर्ट करेगा दैट मिस्टर ए हैज़ नॉट गिवन बैक इट्स इंस्टॉलमेंट सिंस लास्ट 90 डेज। सो 90 दिन ओवर ड्यू हो चुके हैं इसके इंस्टॉलमेंट। इसी तरह फिर 180 डेज़ पे भी रिपोर्ट करेगा और 365 पे भी रिपोर्ट करेगा। सो जब भी सो नाउ ये रिपोर्ट बनते हुए एक डेटा कंपाइल होता चला जा रहा है कि एक इंडिविजुअल सब बैंकों से कितना लोन ले रहा है, फिर उस लोन में से कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो कितना कर रहा है। सो एक इन्फॉर्मेशन आ रही है। नाउ थिंक एज अ बैंकर कि अब आप अगर एक रिपोर्ट देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि एक इंडिविजुअल ने 90 दिन से सो एंड सो बैंक का पैसा वापस नहीं किया, तो बीइंग अ बैंकर आपको इस पर क्यूरियस होना चाहिए कि ये मज़ीद पैसा क्यों लेने आ गया है। पहले ही ये लोन रीपे नहीं हो, इसकी कैपेसिटी नहीं है, या ये जानबूझ के नहीं कर रहा, या अगर इसने पिछला लोन वापस नहीं किया तो हम उसको मज़ीद लोन कैसे दे दें। सो यहाँ पे फिर बैंकर की प्रूडेंस आएगी कि वो लोन देना चाहता है, नहीं देना चाहता, या देना चाहता है तो कैसे देगा और क्यों देगा और किस जस्टिफिकेशन पे देगा। सो दिस इज़ द अदर थिंग नंबर 1। सो ECIB रिपोर्ट होती क्या है ये मैंने आपको बता दिया, अभी दिखाता भी हूँ इसका प्रीव्यू। एंड सेकेंडली इट इज़ मैंडेटरी बाय ऑल कमर्शियल बैंक्स के जब भी किसी कस्टमर को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको भी बैंक ने लोन देना है, लोन देने से पहले वो ECIB रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करवाएगा सेंट्रल बैंक के इस इदारे से। फॉर एग्जांपल मिस्टर बी बैंक अल हबीब से लोन लेने आता है, तो मिस्टर बी के बिहाफ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन वो अपनी प्रोवाइड करेगा एक एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, CNIC नंबर होगा, बेसिक डिटेल्स होंगी, सैलरी, और अगर कंपनी है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ। सबसे पहले बैंक अल हबीब CIB डिपार्टमेंट से ये रिपोर्ट निकलवाएगा उस के बारे में जो कि लोन लेने आया है। सो जब वो रिपोर्ट आएगी तो पहले उस रिपोर्ट को रिव्यू किया जाएगा कि क्या कोई कस्टमर जो बोरो करने आया है उसने डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया, उसका टोटल लोन कितना है। अगर डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो आप उसके एक प्रोफेशनल कैरेक्टर को जज करना चाह रहे हैं कि ये बंदा डिफ़ॉल्ट नहीं करता, ये लोन लेता है तो उसको वापस भी कर देता है, क्योंकि ओवर ड्यू की कोई हिस्ट्री नहीं आ रही, कस्टमर ने अपने टाइमली पेमेंट्स की हुई। सो एक्चुअली CIB का पर्पज़ ये है कि सब बैंकों की एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनती है, और वो स्टेटमेंट फिर हर बैंकर जो किसी को लोन देना चाहता है तो वो एक्सट्रैक्ट करता है, वो रिपोर्ट लेता है, देखता है, और फिर असेस करता है कि इसका प्रोफेशनल कैरेक्टर कैसा है, ओवर ड्यू तो नहीं करता कस्टमर। सो इस तरीके से ECIB रिपोर्ट उसका प्रोफेशनल कैरेक्टर जज करने में हेल्पफुल होती है। सो क्या है ECIB में, एक इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट है जिसमें प्रीवियस लोन हिस्ट्री और जो जितना उसका लोन वगैरह है या डिफ़ॉल्ट है वो सारा कुछ, या अगर उसने कोई रीस्ट्रक्चर करवाया हुआ है लोन, रीस्ट्रक्चर का मतलब कि पेमेंट देनी थी 31 मार्च 2020 को लेकिन वो नहीं दे सका, तो उसने कहा कि जी डिफ़ॉल्ट में ना डालें बल्कि इसकी पेमेंट डेट इन्हेंस कर दें, मैं आपको जून में पे कर दूँगा। सो रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह भी उस ECIB रिपोर्ट में शो हो रही होती है। नाउ दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ CIB रिपोर्ट। ये कॉन्फिडेंशियल होती है, किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती, और इसके ऊपर अगर बैंक ये CIB रिपोर्ट किसी भी अपने कस्टमर के साथ शेयर कर देता है दैट तो बैंक को बहुत हैवीली फ़ाइन या पेनलाइज किया जाता है। इसी वजह से इसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा जाता है। इसका पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ बैंकर से एसोसिएटेड है कि बैंकर इसको देखे और अंदाज़ा लगाए कि किसको लोन देना है या नहीं देना, ओवर ड्यू है या नहीं। सो अब अगर आप इसको 1 बाय 1 देखें तो सबसे पहले कॉर्पोरेट प्रोफाइल में उसका कोड लिखा है, नेम लिखा है, एड्रेस लिखा है, फिर आप देखें आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ लिखी हैं। सो 8.394 बिलियन उसका फंड बेस्ड है, 2.045 उसका नॉन फंड बेस्ड है। ये अब इसको मैं फर्दर एलेबोरेट नहीं कर रहा बिकॉज ये ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा आपके लिए। फिर अमाउंट अंडर लिटिगेशन, राइट ऑफ, पास्ट ड्यूज़ 90 डेज़ जो मैंने आपको बताया कि 90 दिन हो गया उसने पे नहीं किया, या 365 डेज़ हो गए हैं, या कोई रिकवरी। सो उसके अलावा उस ग्रुप जैसे पैकेजेस ग्रुप है, सो पैकेजेस ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ये वही लिखी हुई हैं, एबर्ट लेबॉर्ट्रीज है, या लोड्स है, पाकिस्तान केबल है, DIC पाकिस्तान होगी, नेस्ले होगी, टेट्रा पैक होगी। सो बेतहाशा ये जो कंपनीज़ हैं ये पैकेजेस ग्रुप के अंदर आती हैं। सो वो भी सारा कुछ मेंशन कर दिया।
और लास्ट में जो आप टेबल देख रहे हैं क्रेडिट इंक्वायरीज़ का, इसमें आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक 4-6 आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक 1-6 आ रहा है, फॉरेन बैंक 1-6 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ECIB रिपोर्ट किस किस डेट को एक्सट्रैक्ट की गई। सो ये एक पुरानी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि 4/6/2012 की रिपोर्ट है, और उसके साथ फिर उसकी 5-6 बैंकों की हिस्ट्री भी बताई जा रही है कि इसी कंपनी की यानी कि पैकेजेस लिमिटेड की और भी कब कब ECIB एक्सट्रैक्ट की गई। अब इसका पर्पस ब्रीफली बता दूं, ये है कि ये जो रिपोर्ट होती है ये अप टू अ सर्टन टाइम होती है या अप टू अ सर्टन पीरियड होती है। जैसे अगर आप देखें कंसोलिडेटेड क्रेडिट एक्सपोजर जो आपकी रिपोर्ट के 1 2 3 4 5 6th लाइन है, जहाँ से रिपोर्ट शुरू हो रही है, इसकी 6th लाइन देखें, कंसोलिडेटेड क्रेडिट एक्सपोजर एज ऑन 30 अप्रैल 2012। सो ये जो रिपोर्ट हमें दी जा रही है ये 30 अप्रैल 2012 की है, और कस्टमर आपसे जो लोन लेने आया है, लेट से वो 4 जून को आया है, तो इन बिटवीन का जो डेटा है वो इस रिपोर्ट में शो नहीं हो रहा। सो ये जो लास्ट में क्रेडिट इंक्वायरीज़ हैं ये इसी पर्पज़ के लिए हैं कि आप कस्टमर से पूछ लें कि आपने 4/6 या 1/6 या 31/5 किन किन बैंकों से रब्ता किया था और क्यों किया था, आपकी ECIB रिपोर्ट क्यों निकलवाई गई थी। सो कस्टमर आपको बता देगा कि मैंने इन बैंकों से भी लोन किया है या कोई और पर्पस हो सकता है। सो एनी हाउ ये सारा कुछ नटशेल है। हम एक्चुअली यहाँ पे असेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस कस्टमर का प्रोफेशनल बिहेवियर या प्रोफेशनल क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। सो दिस इज़ द फर्स्ट कैनन ऑफ लैंडिंग, जिसको हमने कहा कैरेक्टर। सो आई होप कि आपको कैरेक्टर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इन द कमिंग लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रेस्ट कैनन्स ऑफ लैंडिंग। टिल देन स्टे सेफ। जज़ाकल्लाह।